channel content creator. Hope you all are fine and doing great in your life. Today our topic is Plasmodium falciparum and ये जो टॉपिक है ये आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ कहीं नहीं मिलेगा. तो अगर आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा. तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड फ्लैक्स मीन सिकल एंड परेर मीन ब्रिंग फॉर्थ. तो इसकी हिस्ट्री में सबसे पहले फ्रेडरिक माइस्टर ने इसे एज ए ब्लैक पिगमेंट ग्रेन्यूल हमारे किसी भी पर्सन के ब्लड में या स्प्लीन में डिस्कवर किया था. तो हम लोग सबसे पहले अगर इसकी लोकेशन की यहाँ से बात करें तो ये ब्लड और स्प्लीन में भी पाया जाता है. उसके बाद 1880 में इसका जो ट्रांसमिशन एजेंट था जो एनिलोफिल मॉस्किटो थी जो कि इस डिजीज के स्प्रेड में एक मेजर रोल प्ले करी थी, वो 1880 में हमारे पास लुईस अल्फॉर्स ने डिस्कवर की थी. नेक्स्ट हम लोग प्लाज्मोडियम falciparum से जो डिजीज कॉज होती है उसे एज इरेगुलर मलेरिया भी कहते हैं. द रीजन ऑफ कॉजिंग इज इरेगुलर इज दैट कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये इंडिकेट कर रही है उसके अटैकिंग पैटर्न को. और अगर आप इसको इस पूरी लाइन को यहाँ से आप लोग अगर इस लाइन को यहाँ तक ऑब्जर्व करें तो ये आपको नजर आएगा कि ये इरेगुलर वे में अटैक कर रही है, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी प्रॉपर रेगुलर वे में अटैक नहीं कर रही. तो इसकी अटैकिंग वे के बेस पे वी कॉल्ड इट एज irregular malariae, and it is the deadliest parasite among all other parasites which cause malaria in human, and inflammation or infection is also related with the development of cancer. Next, that we called it as a black water fever because it result in hemolysis. hemolysis mean हमारे जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, जो हम ये HB लेवल जो है ये उस HB को ब्रेक करता है, और वो जो HB का ब्रेक डाउन है वो हमारी यूरिन से पास आउट होता है और वो हमारे यूरिन को ब्लैक कलर दे देता है एज इट इज ऑब्जर्व हियर होता है. नॉर्मली हमारा जो यूरिन होता है वो इस कलर का होता है, लेकिन द यूरिन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड द प्लाज्मोडियम falciparum is of black color. So we called the disease associated with Plasmodium falciparum as black water fever. Next is the classification of the parasite. It's belong to the genus Plasmodium and its species falciparum. Okay, next is the habitat. Habitat is the place where the parasite cause its infection or infestation. मीन से मुराद वो जगह है जहाँ पर जो पैरासाइट है वो अपना इन्फेक्शन कॉज करता है. We can also call habitat as abode of a parasite. And there are two major abode of a Plasmodium falciparum. One is the parenchyma cell of a liver. Here we can observe that this is the parasite present in the liver cells. This greenish color this I am highlighting is the parasite. And the second most favorable or lovable abode of a Plasmodium falciparum is the blood. Here it was present in the blood in this form and it is under the smear appearances. यानी कि ये जो appearances है ये smear में, ये देखें यहाँ पे आप देखें कि ये as a black color granule आपको visible भी होगा जो कि हमारे पास फ्रेडरिक मास्टर ने डिस्कवर किया था. Next is the geographical distribution was mainly distributed in tropical and subtropical region. The strain of Plasmodium falciparum in America is mainly deadliest because it is resistant. यानी ये हम लोग प्लाज्मोडियम को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं वो क्लोरोक्विनिन यूज करते हैं. तो अफ्रीका में जो प्लाज्मोडियम falciparum की स्ट्रेन पाई जाती है जो कि ब्लैक वाटर फीवर कॉज करती है, वो इस मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है. तो वो स्ट्रेन जो है वो सारी स्ट्रेन में से सबसे ज़्यादा जो है वो एक डेडलीस्ट स्ट्रेन है. Moving toward the morphology of Plasmodium falciparum, the first form in which this parasite was encountered or in which it exists is ring form parasite. The parasite in this state is referred to as young trophocyte, and the location or abode of this form of a parasite is RBCs, and it appears like a ring form, and on the appearance of this ring we called it as a ring form parasite, and it just contains a nucleus. This is referred to as a nucleus, and the surrounded portion which surround the nucleus is referred to as cytoplasm. The Plasmodium falciparum is trophocyte form, which is a mature form of Plasmodium falciparum or a mature ring form of a parasite because it get vacuolated, and it is the form which is present in infected RBCs. Mean that this form will cause an infection in the RBCs of a person in which they are present. Mean that जो हमारे ring form है वो infectious form नहीं है, लेकिन जो trophocyte form है वो एक infectious form है, उस पर्सन के RBCs को अफेक्ट करती है. जो पर्सन है उसके RBCs में एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है हीमोग्लोबिन का जिसे हम लोग हीमोजोइन कहते हैं. यानी कि मैंने पहले भी कहा पिछले कुछ टाइम पहले कि ये हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करता है.
तो वो जो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है वो उस पर्सन के आरबीसीज में इन द फॉर्म ऑफ हीमोजॉइन एग्जिस्ट करता है. Form is schizozoont. They are the small asexually dividing cell of a parasite. Mean that the parasite at this stage start dividing and producing other more cell to spread its infection in a person body. ये हमारे पास किसी भी infected person में अपनी जो number है उसे increase करना स्टार्ट कर देते हैं सिजियोजोंट की स्टेज पे, और इनकी जो प्रेजेंस है वो किसी भी पर्सन के ब्लड में वो एक सीरियस इन्फेक्शन को अकाउंट करती है. एंड देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ शिजियोजोंट. दे मे बी इन इमेच्योर फॉर्म और इन mature form. When they are in immature form they contain 2 or more merozoite, and when they are in mature form they contain 10 to 36 merozoite, which also lead toward the major serious infection of Plasmodium falciparum. Last form, which is the sexual form of a Plasmodium falciparum, is gametocyte form, and this form exists in mosquito. Mean that the forms inside the human bodies are only till the schizoont. Gametocytes है वो human body में exist नहीं करते. वो human body में जो infectious form होती है उनकी वो trophozoite form होती है, और जो asexually dividing form होती है वो उनकी schizoont form होती है. लेकिन इन मॉस्किटो के अंदर जो इनकी infectious form होती है वो gametocyte होती है, और जो gametocyte होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, मेल gametocytes की फॉर्म में और फीमेल gametocyte की फॉर्म में, which are referred to as microgametes and macrogametes. Eukaryote and oocyst, these three forms will exist in mosquito: eukaryote, oocyst, and gametocyte. And the first three forms, which were referred to as ring form, trophozoite form, and schizoont, which contain merozoites, they are present in human body. और ये जो ऊकेनाइट और oocyst है ये हमारे पास उसकी जो मॉस्किटो होती है उसकी बॉडी कैविटी के अंदर पाई जाती है, उसके मिड गट के अंदर पाए जाते हैं, और ये लीड करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ अ प्लाज्मोडियम falciparum फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन फॉर काजिंग मलेरिया. As I have discussed that the forms of Plasmodium falciparum are in two organisms, one is mosquito and other is human, so it is referred to as a digenetic organism. Digenetic organism is the organism which have two organisms to complete its life cycle, as among which one is referred to as intermediate host and the other is referred to as definitive host. Definitive host is the host in which parasite undergo its sexual reproduction, and indefinitive host is the host in which parasite undergo its asexual reproduction. And asexual reproduction is also referred to as schiziogony, and sexual reproduction is also referred to as sporogony. So here the asexual reproduction occur in man, as I have tell you that asexual reproducing form is schizozoont. So intermediate host of a malaria is man, and sexual reproduction occur in mosquito in the form of a gametocyte. So we will call mosquito as the definitive host. Let's discuss something about Anopheles mosquito, which is a major transmitting agent of the Plasmodium falciparum to human to cause its disease and spread. falciparum से अगर आपने बचना है तो आपने वाटर स्टैंडिंग वाटर को प्रिवेंट करना है. दे वर एक्टिव एट 2 टाइम्स. एक तो ये है ये डॉन के टाइम पे, एक तो ये डॉन से पहले एक्टिव होती है और दूसरा ये डार्कनेस के बाद एक्टिव होती है. तो आपने इस टाइम पर मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट करना है if you want yourself to prevent from Plasmodium falciparum infection. I have used the term female Anopheles mosquito. Why we haven't used the term male Anopheles mosquito? Because male Anopheles mosquito feeds not on in the blood. Only female Anopheles mosquito feed on the blood because of the development of its egg, which it lay down to produce larva. As in male, there is no procedure of egg development, so they didn't feed on the blood. As female Anopheles mosquito feed on the blood, so they have a special structure to inject blood meal, which is referred to as pulpellus. Now this is the life cycle of Plasmodium falciparum. In this one diagram, I will try to cover the whole developmental stages of the Plasmodium falciparum. The Plasmodium falciparum का जो life cycle है वो start होता है. So when a mosquito inject a person or take a blood meal from a person, then during its infection, it will inject a sporozoite. These sporozoite will move toward the liver cell. Before infecting the red blood cell, these sporozoite will move toward the liver cell, where they will infect the living cell and mature into their schizoont form, and that schizoont form will release the merozoite form will enter the blood cell and start their life cycle from a ring
form and move toward the trophozoite form. Then they will mature to schizozoite, which will further release and affect the other RBC cells. But in that process, some of the immature ring form will mature into gametocyte form, and that gametocyte form will transfer via blood into a mosquito. They will fuse together to form ookinete form, and these ookinete will mature to form oocyst, and these oocyst from the mid gut और प्रोबोसिस एक ऐसा पार्ट है मॉस्किटो का जिसमें हमारे पास जो हमारे पास oocyst है वो स्पोरोजाइट फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और इस पार्ट के जरिए जो मॉस्किटो है वो जो स्पोरोजाइट फॉर्म है उन्हें किसी भी ह्यूमन में ट्रांसमिट करती है, और इस तरह से हमारे पास वो आगे से अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू करता है और वो डिजीज को स्प्रेड करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. Talk about the stages of a sporozoite form in human body, then they exist in 3 stages. Number 1 is in the liver stage. यहाँ पे जो स्टेज है ना इनकी, ये लिवर स्टेज. इन लिवर स्टेज दे आर प्रेजेंट इन स्पोरोजाइट फॉर्म. यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम इज लिवर सेल, then we will say that in liver cells Plasmodium falciparum it exists in sporozoite form, and sporozoite form is the asexually dividing form of the Plasmodium falciparum, and it contains merozoite form. And in immature form it will contain 2 to 3 merozoite form, and in mature form it will contain 20 to 30 merozoite form. अब नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है इसकी ब्लड स्टेज. तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए ब्लड स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, तो ये ब्लड स्टेजेस में अपनी पूरी मॉर्फोलॉजी को रिपीट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले ड्रिंक फॉर्म में आते हैं, फिर वहाँ से ये मेच्योर होकर ट्रोफोजाइट फॉर्म में आ जाते हैं, ट्रोफोजाइट फॉर्म से ये शिज़ोइड फॉर्म में जाते हैं, शिज़ोइड फॉर्म से ये दोबारा से मीरोजाइट फॉर्म में जाते हैं, और मीरोजाइट फॉर्म के इन फॉर्म्स के अलावा यहाँ पे ये हमारे पास ये देखें ये गैमेटोसाइट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. तो ब्लड स्टेज पर ये अपनी सारी मॉर्फोलॉजी को रिपीट कर रहे होते हैं. और अगर हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन का हम लोग किसी दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफर कर दें तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम जो है ये ब्लड ट्रांसफर के जरिए भी हमें बस अफेक्ट होता है. यानी कि एक तो उसकी जो ट्रांसमिशन थी वो एनोफिलीन मॉस्किटो थी, यानी कि जो मॉस्किटो था वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम को ट्रांसमिट कर रहा था. तो लेकिन जो दूसरा फैक्टर इसके ट्रांसफर का है वो हमारे पास ब्लड ट्रांसफर है. यानी कि अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफर कर रहे हो, या आप लोग कोई नीडल वगैरह शेयर कर रहे हो जिसके ऊपर ब्लड वगैरह लगा हुआ है, तो उससे भी प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम एग्जिस्ट करता है. तो अब हमारी 2 स्टेजेस हो गई. पहली स्टेज जो थी वो लिवर स्टेज थी, दूसरी थी वो ब्लड स्टेज थी. जो थर्ड स्टेज है वो हमारा मॉस्किटो स्टेज है. यानी कि ये मॉस्किटो में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये मॉस्किटो में सबसे पहले माइक्रोगैमीरो और इंडो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. फिर उसके बाद ये हमारे पास जाइगोट बनाते हैं, जो कि जाइगोट जो होता है वो मेच्योर होकर हमारे पास ऊकेनाइट फॉर्म बनाता है. ऊकेनाइट जो होता है वो मेच्योर होकर हमारे पास oocyst बनाता है, और oocyst जो है वो हमारे पास स्लिवरी ग्लैंड में मूव करता है, और स्लिवरी ग्लैंड में जाकर ये स्लिवरी ग्लैंड से ये जो पार्ट है ये वाला ये प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस में ये स्पोरोजाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और स्पोरोजाइट फॉर्म जो होती है ये किसी मैन में ट्रांसफर करते हैं. तो मॉस्किटो के अंदर इनकी जो फॉर्म है वो गैमेटोसाइट्स हैं, फिर उसके बाद जाइगोट है, फिर ऊगेनाइट है, फिर oocyst है, और फिर उसके बाद जो है वो स्पोरोजाइट फॉर्म है. बस इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन आ जाती है यहाँ पर. ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन अभी मैंने आपको बता दी कि एक ये मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है, दूसरा ये हमें बस ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. फिर हमारे पास ये देखो यहाँ पे जो मेजर मेन चीज़ है वो आ जाती है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन. यानी कि ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन से मुराद ये है कि अगर कोई भी मदर हमारे पास प्रेग्नेंट है तो इन्फेक्टेड मदर प्लेसेंटा के थ्रू हमें जो प्लेसेंटा है इस प्लेसेंटा के थ्रू वो जो इन्फेक्शन होगा प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम का वो अपनी फीटस में ट्रांसफर करेगी. तो वो जो न्यू बॉर्न होगा, जो बच्चा पैदा होगा उसे मतलब कि बाय बर्थ प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम इन्फेक्ट कर रहा होगा. तो एक इन्फेक्टेड मदर की जो प्रेगनेंसी है वो भी प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम की ट्रांसमिशन का एजेंट बनती है. हेयर आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है ब्लड में ये एनीमिया कॉज करते हैं. फिर उसके अलावा जो है वो ये सारी ब्लड की ये जो है इनकी ब्लड में फॉर्म्स है. फिर उसके अलावा जो है ये हमारे पास ये देखो यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जाते हैं. ये जो है ना ये सारे ऑप्शन ये हमारे पास ये देखो इनकी मेटास्टेसिस फॉर्म के साथ एग्जिस्ट करते हैं. तो वो अभी हमने नहीं पढ़ा, वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. द सिम्टम्स रिलेटेड विद टू अस इन दैट वीडियो इज ओनली विद द ब्लड. तो यहाँ पे ये आप सिम्टम भी लिख सकते हैं.
The next portion is the immunological response of our body against the Plasmodium falciparum कि जो हमारी बॉडी है वो किसी भी Plasmodium falciparum के अगेंस्ट किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर हम लोग ये मैंने स्टेजेस वाइज इनका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो डिवाइड किया हुआ है। अगर हम लोग बात करें लिवर स्टेजेस की तो लिवर स्टेजेस में हमारे लिवर फैगोसाइटोसिस सेल होते हैं जिन्हें कहते हैं कफर सेल, जिन्हें कहा जाता है वो कफर सेल जो है वो हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं, प्लाज्मोडियम falciparum को engulf कर देते हैं और फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर हमारे पास ब्लड के स्टेजेस पे हम लोग आ जाए तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एंटीमियोजाइट मेडिसिन होती हैं वो हम लोग ले रहे होते हैं और वो एंटीमियोजाइट एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे पास इस पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। तो हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में हमारा जो ब्लड है, ब्लड में एंटीमियोजाइट के साथ साथ हमारे ब्लड में जो मैक्रोफेजेस वगैरह है वो भी इन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दिस वाज द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोक्विनिन है वो हम लोग वो वाली एंटीबायोटिक यूज कर रहे होते हैं। और हमारे पास अफ्रीका में जो डिजीज पाई जा रही होती है वो इससे रेजिस्टेंट है तो उनके अगेंस्ट हम लोग जो है वो एक तो ये पायरीमेथियामाइन यूज करते हैं, फिर हम लोग मेफ्लोक्विनिन भी यूज कर रहे होते हैं और हम लोग कॉम्बिनेशन थेरेपी भी यूज करते हैं। All about Plasmodium falciparum and hope you understand it well. If you are further having any query then you can ask it in the comment section. I will reply you and share it with your friends. If you find anything useful in it, it will be helpful for you, your friends and for my. Thank you so much for watching the video.